So, I'd like to welcome everybody here and also thank you for coming here because I think this is a central part of what we are going to have to do going forward. Prior to the situation we are facing, training was had almost become optional in the Congress party. And it is important to understand why we find ourselves in the situation we find ourselves. Today, whether we like it or not, the divisive ideology, the hateful ideology of the RSS and the BJP has overshadowed the loving, affectionate, and nationalistic ideology of the Congress party. And we have to accept this. We can no longer not accept this. Our ideology is alive, it is vibrant, but it has been overshadowed. It has been overshadowed partly because of a complete capture of the media, of a complete capture of the Indian nation, but it has also been overshadowed because we have not propagated our ideology among our own people aggressively. And the central way we have to propagate our ideology is by training our own people and by involving our own people in a conversation about what it means to be a congressperson. And how is that different from being a RSS person? How does one change from becoming a RSS person to a Congress person? And how does one change from becoming a Congress person to an RSS person? We very often discuss issues. So, for example, we will have vibrant discussions about why 370 was wrong, or why, um, you know, we view certain happenings in a particular way. But we do not go any longer into the foundations of the Congress ideology. When I say Congress ideology, it is actually a misnomer. It is not accurate. It is an ideology that the Congress follows, but it is an ideology that has been existing in India for thousands of years. Just like the RSS has its icons, the Congress ideology also has its icons. They are different icons, but we have them. Uh, so it is about bringing this ideological ocean and allowing our people to swim in it. Because this is not, it is an ocean. It is the entire knowledge of thousands and thousands of years of people who have stood for what we stood for. There's a lineup of them. And they exist in all religions. Um, you can start with people like, I mean, the beginning is people like who we call Shiva, people like Kabir, people like Guru Nanak.
These were ideas that represent what we stand for. And they've been coming along, Gandhiji being a very good example. So these are people who have stood for what we stood for. And we have to study what they were saying deeply. We have to think about what they were saying. Is there something common between what, say, a Guru Nanak said or a Kabir said and Hindutva ideology? Is there something in common between what Gandhiji said or King Ashok said and Hindutva ideology? What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different things. And so these are the type of things that we have to start to explore and understand and develop a group of people, 100, 200, 300, 500 people who deeply understand these differences, who can apply these differences to issues, to behavior, to action. Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. So these are the type of things we have to discuss, and these are the type of things that we have to spread among ourselves. And once we start to spread it and effectively amongst ourselves, we will find it will automatically start to spread among others. And this is the mission that you are embarking on. This is the foundational mission of Congress Karyakartas. This is going to be central, and in my view, and Venugopalji and others might have a different opinion, but in my view, it should be compulsory. It should be mandatory. Every single person should go through it. It should be a rigorous course, and it should develop people who have real understanding of what it means to be a Congress person. I'm sure this understanding is there intuitively in many of you. You know it, you speak it, you live it. You have to now spread it. हिंदी में बोलता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमें एक बात माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है, और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउड स्पीकर है,
उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउडस्पीकर नहीं है, मशीनरी है। 2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे एक बार चाइना के कोई लोग नेता आए थे, मैंने उनसे पूछा आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नए नाम की क्या जरूरत। और ये जो हमारी विचारधारा ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका वो ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। हमने जिस प्रकार से अपनी विचारधारा को, जिस गहराई से अपनी विचारधारा को समझना चाहिए और फैलाना चाहिए, वो हमने पहले हम करते थे, वो हमने छोड़ दिया। और उसके कारण थे, किसी की गलती नहीं मगर कारण थे। मगर अब समय आ गया है कि हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहरा करना है। इसके लिए हमें 100, 200, 300, 400 लोगों की जरूरत है जो इस विचारधारा को गहराई से समझें और अपनाएं, इस विचारधारा को बन जाएं। उनमें से आप मेरे सामने बैठे हो और हमारा लक्ष्य इस विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का है, समझाने का है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे इस विचारधारा को कोने कोने तक पहुंचाने का है। मेरे मुताबिक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो हो, विचारधारा की ट्रेनिंग जो हो, मेरे मुताबिक उसे कंपलसरी होना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सीनियर हो, कितना भी जूनियर हो, उसे उसके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए।
और सिस्टमैटिकली अलग अलग लेवल्स की ट्रेनिंग पूरे देश में हमें करनी है। मैं सोचता हूं कि अगर हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहराई से फैलाया, इश्यूज की लेवल पे और सोच की लेवल और एक्शन की लेवल पर, जैसे हम कभी कभी कहते हैं 370 पे बात होती है, अलग अलग मुद्दों पे बात होती है, आतंकवाद पे बात होती है, नेशनलिज्म पे बात होती है। इन सब इश्यूज पे, मुद्दों में कांग्रेस की विचारधारा के पास जवाब है, अच्छे जवाब है। मगर हमारे ही कार्यकर्ताओं को हम ये औजार नहीं देते हैं। आज बदलाव का समय है। हमें ये औजार अपने हर एक कार्यकर्ता के हाथ देना है। इसलिए आप सब आए हैं। मैं आपको बधाई देता हूं और काफी कॉन्फिडेंस से कहता हूं, विश्वास से कहता हूं कि जिस काम के लिए आप आज निकले हैं, उस काम को गहराई से आप पूरा करके दिखाएंगे और मैं भी आपके साथ इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। टू कंक्लूड, यू आर द कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी हो और ये जो इतिहास है जिसको गांधी जी आगे ले गए, दिस tradition that Mahatma Gandhi has taken forward is inside you. ये आपके अंदर है, ये आपके खून में है। कभी कभी आजकल कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, आरएसएस में चले जाते हैं। अभी उत्तराखंड में मेरी आर्या जी से बात हुई। आर्या जी आरएसएस बीजेपी में गए, वापस आए और मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ वापस क्यों आए? और उन्होंने कहा, राहुल जी नहीं करता, वहां पे जिया नहीं जाता, वहां पे हमें घुटन सी होती है। वो समाज को बदलना नहीं चाहते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं मगर हमें इज्जत और जगह नहीं देते हैं। तो ये सेंटिमेंट हर कांग्रेसी के दिल में है। डर के वो भाग सकता है मगर वहां जी नहीं सकता, वहां जीते हुए मर जाता है। तो that is the spirit that we have to spread. It is like I have been studying it over the last I would say 12 years, and it is like a jewel. It is like a jewel with like a beautiful jewel with unending power inside it. It is our strength. It is why we exist. And it is important that we discover it. They have discovered their ideology. They have crystallized their ideology. We have to crystallize ours. And the moment we crystallize ours,
it will envelope theirs. जैसे शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी को निगल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, वो गायब हो जाएगा। और जो नफरत आज फैलाई जा रही है वो गायब हो जाएगी, और जो भविष्य आज नहीं दिख रहा है वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस कठिन स्थिति में आपने जो मार्गदर्शन किया उस पर ज़रूर चलने की हम कोशिश नहीं बल्कि संकल्प इस शिविर के माध्यम से करते हैं। ऐसा तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और शिविरार्थियों की तरफ से मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देते हुए, ये लड़ाई जो है ये भारत को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपका मार्गदर्शन, आपकी हौसला अफजाई हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। आप व्यस्तता होने के बावजूद हम सब के बीच में मौजूद रहे, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस उद्घाटन के सत्र को का समापन करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन, एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। जी भैया। जब आप बोल रहे थे मैं सोच रहा था, आपका ट्रेनिंग का मिशन क्या है? ट्रेनिंग का मिशन विचारधारा को फैलाने का है, मगर हमारी विचारधारा जब फैलती है जब व्यक्ति के दिल के अंदर डर और दर्द मिटता है। तो हमारा काम, हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में जो दर्द है, जो डर है, उसको मिटाने का है। हमारा मेथड, हमारा सिस्टम, सिस्टम को हम आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कहते हैं, मगर हमारा लक्ष्य हमारे कार्यकर्ता को अपने डर से, अपने दर्द से लड़ने का हथियार देने का है। अगर हमने अपने कार्यकर्ता को अपने डर से और अपने दर्द से डरने का हथियार दे दिया, वो उस हथियार को फैला देगा। वो जो देते हैं, वो हथियार देते हैं, वो डर और दर्द के पीछे छुपने का हथियार देते हैं। तो उनका जो कार्यकर्ता होता है वो दर्द में और डर में डूबा होता है। आप उनके चेहरे देख लो, उनके लीडर्स के चेहरे देख लो, और हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे देख लो। हमारे कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान होती है, मुस्कुराता रहता है वो। उनके कार्यकर्ता गुस्सा होते हैं, नफरत से भरे होते हैं। तो ट्रेनिंग का लक्ष्य डर और दर्द को मिटाने का है। ट्रेनिंग का मेथड आइडियोलॉजिकल है। थैंक यू जी। मतलब जो भी आप करेंगे ना, आपको प्यार के साथ करना पड़ेगा, आपको इज्जत देनी पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको सब लोगों को एक जैसा देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग के अंदर अगर आपने जात की बात शुरू कर दी कि भैया आप दलित हो, आप सवर्ण हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, तो गए, वहीं खत्म हो गई हमारी ट्रेनिंग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।